Hello, one and all. Welcome to Ansarkari, and this is another section of the series on art and culture, where we are trying to understand how to look at the things, how to learn to read basically, and how to extract information. हम डायरेक्टली कोई पीटी के क्वेश्चंस गेस नहीं कर रहे हैं, ना हम डायरेक्टली कोई शॉर्टकट में कोई चीजें रट रहे हैं, ना हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे सामने कोई टेक्स्ट बुक है या हमारे साथ कोई सोर्स है, सो हाउ यू आर गोइंग टू टेक आउट की एलिमेंट्स फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव मोर इम्पोर्टेंटली, कि आप कैसे सोच पाओगे, कैसे आपकी सोच जनरेट होगी, सो दैट अगर आप बहुत सारी चीजें रटने की कोशिश भी करते हो तो आपको आगे जाकर फायदा हो. यू शुड बी एबल टू रिमेंबर दैम, यू शुड बी एबल टू रिवाइज दैम in a time bound manner, because time is very crucial, time is limited for success in this exam. Please do like, share, and subscribe our channel. It will be really appreciated, and give us your valuable feedback also, so that you know more efforts can be made in the right direction. So let's start. Eminent Kannada literature, शिव रामा खरांत. बहुत ही फेमस नाम है शिव रामा खरांत साहब का. शिव रामा खरांत was an amazing, you can say, personality who played very important role as far as literature is concerned. He depicted societal values through literature. Shivram Karan, he was the one. See, here is a photograph also. He is receiving a Karnataka Sahitya Academy Award in 1966. 1966 बोल रहा हूँ मैं. So the point is that Shivrama Karan sir, he broke the tradition. He broke the tradition, or he broke the tradition of not bringing very honest version in public life. तो एज ए वाइस टीचर ऑफ द कम्युनिटी, उन्होंने ऑर्डनरी जो ह्यूमन बीइंग है उनके आइडियाज को वो पब्लिक में लेके आए. उन्होंने पेट्रियार्की से लेकर ऐसी चीजें जो समाज जिनसे शोषित होता है उनको वो लेकर आए. फॉर एग्जाम्पल, उनकी इन हिज ऑटोबायोग्राफी 10 फेसेस ऑफ अ क्रेजी माइंड, उन्होंने मोरल हिपोक्रेसी की बात की, कंजर्वेटिव सोसाइटी की बात की, पेट्रियार्की की बात की. यानी मेन तो ही कैन गो फॉर एनी नंबर ऑफ वुमेन, and then he can become religious pontiff, he can become guru also, but then is the same values applicable to women also? आज की डेट में भी ऐसा हो रहा है. So uh, he has been a role model, especially in these times. So he was a modernist, rationalist, and atheist, and he was the one who participated in the freedom and unification of Karnataka, and he was a believer in the public and private values, and he stood against corruption. तो आप बताइए. And what you are saying, he was a writer. So that is why Shiv Rama Kharant is a is a great towering figure, and he was you know creating great fictional characters, and he had a great ability to restrain personal emotions. और भी जो आगे आने वाले टाइम के writers and even his own children, for example, Malvika Kapoor and Shama Rao and K. Ullas Kharant, they have also written that how loving and doting father he was, और कैसे जो है फैमिली में जब उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता था, उनको रिडिक्यूल भी किया जाता था जब वो अपनी राइटिंग्स को बच्चों के साथ शेयर करते थे, लेकिन फिर भी फैमिली का एटमॉस्फेयर वैसा ही रहता था. शमा, his daughter, is talking about how once he threatened to beat her, and Ullas for nearly ruining the spool of his film, and then telling that of course he would not beat her because she was wearing such pretty earrings. तो घर घर की बातें, सिंपल बातें. But our goal is here to understand that Kotta Shivrama Karant authored 50 novels, 60 plays, children encyclopedia, science encyclopedia in Kannada. तो आज की डेट में जब हम वर्नाकुलर लिटरेचर को प्रमोट करने की बात करते हैं, then comes remembrance of such great personalities. He mastered music, he mastered dance photography, cinematography, Yakshagana.
history, architecture. So he was, that's why he was the recipient of Gyanpith Award, Sahitya Academy Award, and several other awards. So this is, I think, enough what we can write about him. Similarly, going to another great icon and gentleman, Sadanam Krishnakutty, the best all-rounders in Kathakali. So the two photographs you can see here, Kathakali, we will be taking up understanding कि आखिर इसके आगे क्या होता, तो we will be talking about that also, but here I'm just telling you कि Kathakali performance dance, it is bringing, uh, victory of good over evil. It is about stamina, it is about inspiration, it is about, headgear, it is about being very very passionate. Then only you can go for these ideas. So uh, ये जो है आपका Charapulseri is known for its rich heritage in the Valluvanad region of Palakkad district. So Palakkad district is known for you know uh, this rich heritage of Kathakali and other classical things. So the point is that these are the art forms which must be preserved, which must be promoted. हम सिर्फ इतना यहाँ से कहना चाहते हैं. स्टोरी टेलिंग सेशन, विनय वाराणसी, मॉडर्न स्टोरी टेलर हम इनको कह रहे हैं. सो विनय वाराणसी इज अ मॉडर्न स्टोरी टेलर, ये सामने है हमारे, और ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं. कैसे, who is from Bangalore, and but he will be talking about his profession is a architect and design researcher, and he's a co-founder of Unbind, a classical music lyricist हैं, storyteller हैं, but then he has got an immersive storytelling ideas. उसमें कल्चर भी होगा, आलाप होगा, आलाप यानी कि गाने की शुरुआत जैसे हम करते हैं. And then this is one of the examples that how you can also think of creative ideas. Similarly, हम बात करें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कंसर्ट अगर हुआ, देखिए सबके पास वायलिन है, मृदंगम है, और उससे उन्होंने उसको प्रमोट किया. तो हमारे को त्यागराजा, वन ऑफ द ग्रेट टावरिंग एंड वन ऑफ द जेम्स ऑफ कर्नाटका म्यूजिक हम उसको कह सकते हैं. और हर कृति को जो है सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं उन्होंने उसको ढंग से प्रेजेंट किया. दैट इज व्हाट वी कैन ओवर लिंक ओवर हेयर. Coming to architecture, there is a temple called Baburayan Pattai Temple. It is 8 kilometers from Acharapakkam near Chennai. It is called Hampi of Tamil Nadu. Hampi of Tamil Nadu. So Baburayan Pattai Temple. Vijayanagar temple architecture is obviously evolved from of Dravidian style of temple architecture. इसमें क्या है, पुष्करनी का मतलब होता है टैंक, गोपुरम होते हैं गेटवे यानी बड़े बड़े द्वार जो होंगे गोपुरम कहेंगे उसको. एंड देयर विल बी सेपरेट निश, मतलब सेपरेट एरिया है उसके अंदर, ब्रिक्स से बना हुआ है. एंटायर स्ट्रक्चर इज हैविंग पिलर एंड रूफ्स. उसके अंदर क्या है, अर्ध मंडप, यानी मंडप कैन बी मोर देन वंस. आप घुसते हो तो एक आपको पवेलियन जैसा छोटा सा दिखाई देगा, उसको आप अर्ध मंडप कह सकते हो. उसके बाद महामंडप आएगा, वो ग्रेनाइट स्टोन से बना होता है. और उसके बाद अंदर जो है आपका सैंक्टम सैंक्टोरम, जहाँ पर गर्भगृह जिसको कहते हैं या मूल स्थान जिसको कहते हैं, वहां पर डीटी प्रेसाइड होगा. So this is an example that how our temple architecture is so rich and so amazing. Similarly, देसिका विनायकम पिल्लई, नाम सिर्फ बता रहा हूँ, याद करने की इतनी कोई वो नहीं है. उनकी पोएट्री और ट्रांसलेशंस को आर्ट और रियलिटी के थ्रू आप दिखा रहे हैं. तो यानी भरतनाट्यम डांसर एंड टीचर राधिका वैरवेलवन और सुचिंथाई मल्लाई, एक सुचिंथाई मल्लाई आप कह लीजिए कि वर्क का नाम है, उसके थ्रू उसको उन्होंने कर्नाटिक म्यूजिक का मतलब आई शुड से भरतनाट्यम के थ्रू उन्होंने उसको शो किया. मूविंग फर्दर, म्यूजिकोलॉजिस्ट एंड वीणा आर्टिस्ट प्रोफेसर डेविड रेक, जो कि अभी नहीं रहे, वो इंडिया में उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है. डेविड बैक, म्यूजिक ऑफ द होल अर्थ उनकी किताब का नाम है. आप एथिक्स और एस्से में भी इसको कभी ना कभी लिख सकते हैं. तो डेविड रैक जो है, देखिए सामने वीणा बजा रहे हैं और उनको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है. ऊपर आप देखिए, आप उनको ये वीणा बजा रहे हैं और कैरोल उनको रिकॉर्ड कर रही है थ्रू रिकॉर्डर.
तो म्यूजिकोलॉजिस्ट थे और वीणा आर्टिस्ट थे, उन्होंने बहुत स्पेंड इंडिया में टाइम स्पेंड किया टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड इंडियन म्यूजिकल ट्रेडिशंस। जैसे उन्होंने जो है इंडिया आए, रेजिडेंसी प्रोग्राम्स को ज्वाइन किए, जैसे ऋषि वैली स्कूल इन मदनापल्ले, एंड देन लेटर ऑन ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, जगह जगह जाना, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स को अटेंड करना, उनके बाद फिर चीज़ों को सीखना। एंड एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भी वो जानते थे, सीखा उन्होंने। तो दिस शोकेसेस दैट इंडियन म्यूजिक हैज गॉट अ ग्रेट डेप्थ। इंडियन म्यूजिक इज सो डाइवर्स दैट इट अट्रैक्ट्स टैलेंट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। फोटोग्राफर भी थे, मतलब कैरोल फोटोग्राफर है, फिर उसके बाद यक्ष गाना को देखना। तो मैं ये सिर्फ एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ कि कैसे, सिर्फ एक नहीं है ये, ऐसा बहुत सारा है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो कर्नाटिक म्यूजिक एंड लिविंग इन इंडिया ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, ऐसा डेविड साहब का कहना था। गोइंग फर्दर, कला मंडलम, यानी अगेन इट इज लिंक्ड विद चक्कयार, ये वर्ड पीटी में भी आ चुका है पहले भी, तो ये जुड़ा हुआ है। कोत्थू फेस्टिवल इन त्रिशूर, कोत्थू कुत्तू फेस्टिवल मुझे कहना चाहिए, त्रिशूर में। और जो है कुडियट्टम, कुडियट्टम एंशियंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी फेमस कुडियट्टम जो डांस है और कुडियट्टम जो परफॉर्मेंस है, और उसको कैरी ऑन किया आमन और परमेश्वरा जी ने। देखिए सामने फोटोग्राफ देखिए आप कि कैसे उन्होंने किया। तो विदूषक का रोल भी प्ले होता है। It is not just about, it is very, what I want to convey, it is very scientific, it is very rational, and you require a lot of uh, you know uh, energy and also thinking to perform in all these areas and things. Moving further, कव्वाली। So कव्वाली क्या, फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की मतलब आप कह सकते हैं शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में, वहाँ पर उनकी दरगाह भी है, और उस पर जो है परफॉर्मेंसेज होती हैं। बट द क्वेश्चन आ चुका है पीटी में, शेख सलीम चिश्ती के आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आ चुका है। तो कथक एक्सपोनेंट मंजरी चतुर्वेदी हैं जो, कथक, कथक यानी कि उत्तर प्रदेश, और आप नॉर्थ से कथक यानी कथा से निकल के आया है वो। उन्होंने सूफी म्यूजिक और भक्ति म्यूजिक को देखते हुए उन्होंने जो है प्रोजेक्ट को वो किया, मंजरी चतुर्वेदी जी ने। और जो है उन्होंने कव्वाली को लिंक किया, कैसे कव्वाल जो गाते हैं वो कव्वाल जैसे निजामुद्दीन दरगाह में होते हैं, और कैसे वो माहौल बनाते हैं। सो दिस वाज देयर बिफोर पैंडेमिक तो था ही, लेकिन आफ्टर पैंडेमिक इट इज कमिंग बैक ऑल्सो अगेन एंड अगेन। सो दिस इज वन ऑफ द, कव्वाली जो है उसमें हारमोनियम होता है, साथ में तबला होता है, और कव्वाली में उर्दू और हिंदी के शब्द होते हैं। कव्वाली भारत में आती है आपके अमीर खुसरो से, इनका शुरुआत होती है, अमीर खुसरो को उनका जनक कहा जाता है। और मेल जो, मतलब आप कह सकते हैं कि कव्वाली में लेजेंड है, मतलब फीमेल्स को जो है, फीमेल सिंगर्स को कव्वाली में क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि लेजेंड है धई यानी टू एंड हाफ, और कलंदर, जिनमें तीन सूफी संत थे, हजरत लाल शहबाज, हजरत बू अली शराफुद्दीन एंड हजरत राबिया बसरी। तो मेल सेंट जो है दो कैलेंडर होते हैं, वाई राबिया जो है सिर्फ आधा उनको माना जाता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि वुमेन आर्टिस्ट का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको पूरा तरीके से वो बाहर वो नहीं आया। अदरवाइज होना ये चाहिए कि फीमेल का भी उतना ही रोल होना चाहिए। एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कोई, देयर मस्ट नॉट बी एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिसेबिलिटी इन दैट सेंस। एक एंगल से हमने ऐसा कहा। कबीर की जब हम बात करते हैं तो कबीर फेस्टिवल, कबीर की फिलॉसफी, कबीर के आइडियाज, संत कबीर हमारे बहुत बड़े प्रेरक हैं। गंगा आरती का एक्सपीरियंस बनारस में यदि आप बात करेंगे कबीर की, तो वहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक सभी कुछ आएगा। तो ये इंडिया में और अलग अलग सीजन्स में होते हैं। आप अगर यूपीपीसीएस भी दे रहे हैं और आप अगर यूपीएससी भी दे रहे हैं, तो यू मस्ट नो द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट परफॉर्मर्स। वो कम से कम आप जो है उसका मेंस में आप नाम लिख सकते हैं, और प्रीलिम्स में अगर आता है तो यू एटलीस्ट यू आर एबल टू सेग्रीगेट आउट। वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, महत सुब्रमण्यम 10 ईयर ओल्ड म्यूजिशियन है, और उन्होंने अपनी खुद की म्यूजिक वीडियो हाउ वी फील
लॉन्च की, थर्ड जनरेशन आर्टिस्ट फ्रॉम द म्यूजिकल फैमिली। तो आप सोचिए, ये ग्रैंड डॉटर हैं डॉक्टर एल सुब्रमण्यम एंड कविता कृष्णमूर्ति। आप सोचिए कि कैसे हम अपने किसी भी पैशन को हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। सेम इज ट्रू फॉर सिविल सर्विसेज ऑल्सो। प्लीज डू मेक योर शॉर्ट नोट्स, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। आई होप यू आर गेटिंग ऑल information and also you are slowly जैसे म्यूजिक के अंदर भी होता है, बिना माइंड को कंफ्यूज किए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आप बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। थैंक यू वेरी मच।